السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم قرآن کلاس، قرآن سمجھیں سمجھائیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ رات کو سورہ بقرہ اور سورہ زمر کی تلاوت فرمایا کرتے، روزانہ رات کو اس پہ غور و فکر ضرور فرمایا کرتے۔ سورہ سجدہ کی تلاوت کہ سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے، پورے قرآن پاک کی تلاوت کا ثواب۔ سورہ ملک پڑھو، قبر کے عذاب سے نجات میں۔ سورۃ الواقعات پڑھو، فاقہ کشی سے اللہ نجات نصیب فرما دیں گے۔ 23واں پارہ سورۃ الزمر کا آغاز۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، نازل کی گئی یہ کتاب اللہ تعالی کی طرف سے جو غالب حکمت والے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق رحمت سے آج ہم اپنی کلاس میں قرآن کریم کی 39ویں سورہ مبارکہ کا آغاز کرنے جا رہے۔ نزولی اعتبار سے اس سورہ مبارکہ کا 59 نمبر ہے۔ اس سے قبل 58 سورت مکہ المکرمہ میں نازل ہو چکی تھی۔ 8 رکوعات اور 75 آیات پر مشتمل اس سورہ مبارکہ کے 1184 کلمات ہیں۔ سورہ زمر اپنے اندر 5965 حروف کو سموئے ہوئے ہے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے 10 نیکیاں میسر آتی ہیں۔ تو یقیناً سورہ زمر کی تلاوت کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ 59,650 نیکیاں نصیب فرماتے ہیں۔ وجہ تسمیہ الزمر گروہ کو کہا جاتا ہے، چونکہ اس سورہ مبارکہ کے آخر میں جا کے ہم پڑھیں گے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کافروں کو گروہ بنا کے دھکے مار کے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا۔ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، اور اللہ سے ڈرنے والوں کو گروہ بنا کے جنت کی طرف پورے پروٹوکول کے ساتھ لے جایا جائے گا۔ ان 2 آیات کی نسبت سے سورہ مبارکہ کا نام بھی الزمر رکھ دیا گیا۔ آغاز کفار مکہ کے اس اعتراض کی تردید سے کیا جا رہا ہے جو وہ کہتے تھے کہ رسول اللہ علیہ السلام قرآن کریم خود بنا لیتے ہیں۔ سورہ طور میں اس سے پہلے ہم پڑھ رہے ہیں ام یقولون تقولہ، وہ یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود گھڑ لیا ہے، نعوذ باللہ لا یاد باللہ قرآن کریم۔ اس لیے فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ 2 باتیں بیان فرمائی، ایک تو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہے، دوسرا اللہ کریم نے اپنی صفات کا تذکرہ فرمایا، اور صرف اسی سورہ مبارکہ میں نہیں، سورہ مومن میں، سورہ جاثیہ میں اور سورہ احقاف میں، اس سورت سمیت یہ 4 سورتیں ہیں جہاں پہ اللہ کریم نے یہی فرمایا تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ اور جو سورہ سجدہ جمعے والے دن نماز فجر میں آپ سماعت فرماتے ہیں، وہاں اللہ رب العالمین کا ارشاد حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ اللہ الرحمن کی طرف سے اترنے والی کتاب ہے۔ تنزیل الکتابی، کتاب کے اوپر الف لام تخصیص کے لیے آیا، اس لیے کہ توجہ اس کتاب کی طرف ہو، کوئی عام کتاب کی بات نہیں ہو رہی، یہ اسپیشل ایک کتاب ہے جو آپ کے سامنے کھلی ہے، اس کا تذکرہ ہے۔ من اللہ، اس میں ذات کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اللہ 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 کا بیسک مطلب بنتا ہے اللہ ہی معبود ہے، کوئی اور معبود نہیں، یہ لفظ اللہ کا مطلب ہے۔ اور پھر دوسری بات، اللہ والے جو اہل ذکر اور اہل فکر اور اہل نظر ہیں وہ کہتے ہیں لفظ اللہ کے اندر مالک کائنات کی تمام خوبیاں اور اوصاف شامل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں ذات کے ساتھ پھر 2 صفاتی ناموں کا تذکرہ فرمایا، العزیز الحکیم، اس اللہ تعالیٰ جی نے اتاری کتاب جو غالب ہے اور حکمت والے ہیں۔ غالب اس لیے کہ اللہ کریم کے کلام کے ہوتے ہوئے کسی کی جرت نہیں کہ وہ اس کلام کی جگہ اپنا کوئی کلام پیش کر کے کہے کہ یہ منزل من اللہ ہے، یہ اللہ کی گرپ ہے۔ غالب کا مطلب کہ گرپ ہے اللہ تعالیٰ کی پوری کائنات کے اوپر، اور الحکیم کا مطلب ہے کہ اس کی حکمتیں کیا ہے،
یہ اللہ सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। इतनी बाकमाल हस्ती अल्लाह रब्बुल आलमीन की ये किताब अल्लाह की तरफ से उतारी गई। फिर आगे मजीद वजाहत कर दी गई उस इल्जाम की तरदीद में जो वो कहते थे कि मोहम्मद अलैहिस्सलाम कुरान पाक अपनी तरफ से बना लेते हैं, नऊजुबिल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़्क़ि, ये किताब हमने उतारी। जमा मुतकल्लिम का सीगा बोला गया अदब सिखाने के लिए, अदब सिखाने के लिए। अल्लाह जी, अल्लाह ताला जमा मुतकल्लिम का सीगा अपने लिए इस्तेमाल फरमा रहे हैं। ये हमारे लिए अदब है कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला का नाम इंतहाई अकीदत, एहतराम और अदब के दायरा में रह के लें। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब, हमने ये किताब आपकी तरफ उतारी। वजाहत हो गई कि ये रसूलुल्लाह अलैहि सलाम अपनी तरफ से खुद नहीं बनाते, ये अल्लाह की तरफ से बिल हक़्क़ि, हक के साथ। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाया करते थे कि वो शुआरा में से मुझे वो एक शेर बड़ा पसंद है, पहले लोगों के शेरों में से, जिसने कहा था कि सिर्फ अल्लाह ही हक है, बाकी सब कुछ बातिल है। सिर्फ अल्लाह हक है, बाकी सब कुछ बातिल है। हुजूर इस शेर को बड़ा पसंद फरमाते थे जिसमें ये कहा गया सिर्फ अल्लाह ही हक है, बाकी सब बातिल है। फ़अब्दिल्लाह मुखलिसन लहुद्दीन, अल्लाह की इबादत करो इखलास वाले बनकर। मुखलिस की डेफिनेशन आप यही कर लें कि हर वो अमल जिसकी नीयत ये हो कि मैंने अपने अल्लाह को राजी करना है, उसको इखलास बोला जाता है। एक आम फहम सा मैंने मफहूम आपको समझा दी है। दुआ कीजिए हमारे लिए भी, अपने लिए भी, अल्लाह करीम हमारी नीयतों में इखलास पैदा फरमा दे। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, क्योंकि तमाम अमाल का दारोमदार वो नीयतों पे है। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह अपनी सहीहुल बुखारी में सबसे पहली हदीस इसीलिए ये लेके आए हैं कि अगर नीयत ठीक होगी तो बाकी अहकामात तो सही बुखारी के बाद में पढ़ने हैं, सबसे पहले अपनी नीयत दुरुस्त करने की जरूरत है। तो इसलिए फरमाया फ़अब्दिल्लाह मुखलिसन, अल्लाह ताला को राजी करने की नीयत के साथ इबादत करो, लहुद्दीन, अल्लाह की ताबेदारी करते हुए। ये जो लफ्ज दीन है ना, इसके चार मफहूम मेरी समझ में आए हैं। कुरान करीम में ये मुख्तलिफ फॉर्म में इस्तेमाल हुआ है। तो दीन का एक मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला की हाकमियत को तस्लीम करना। दीन का दूसरा मतलब बिल्कुल इसके अपोजिट है। वो क्या है कि खुद को हमा वक्त अल्लाह ताला का गुलाम तस्वुर करना, अल्लाह की गुलामी में लगे रहना। मैंने अपने अल्लाह जी की बात माननी है, मैंने अपने अल्लाह जी की नाफरमानी नहीं करनी। और दीन का तीसरा मफहूम कुरान करीम में कानून जज़ा व सजा बयान हुआ है। हम कहते हैं ना सूरतुल फातिहा, मालिकी यौमिद्दीन, क़यामत के दिन के मालिक, बदले के दिन के मालिक है। मतलब क्या, अच्छों को जजा मिलेगी, बुरों को सजा मिलेगी। और चौथा दीन का मतलब मुझे कुरान करीम में से ये समझाया है, चौथा इसका मानी ये होता है कि कानून जजा और सजा का निफाज और इनइकाद क़यामत का दिन होगा। कह दिया जाएगा इक़रा किताबक, लो अपनी किताब खुद पढ़ लो, कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा, तुझसे ज्यादा कोई पढ़ने वाला नहीं है। तो समझता है तूने क्या करतूत किए हैं। जिसने नेकियां की होंगी नेकियों के अंबार उसको अजर सवाब की सूरत में मिलेंगे, जिसने बुराइयां की होंगी उसको सजा मिलेगी, जहन्नुम डाल दिया जाएगा। अल्लाह हम सबको महफूज फरमा ले। तो लिहाजा दीन का ये मतलब है, अला लिल्लाहिद्दीनुल खालिस, खबरदार दीन सिर्फ अल्लाह के लिए खालिस है। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के यहाँ दीन इस्लाम ही कबूल है। वल्लज़ीन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही औलिया, एक कुफ़ार का एतराज ये था कि ये किताब अल्लाह की तरफ से नहीं उतरती। अल्लाह ताला ने उसका जवाब दिया। दूसरा कुफ़ार की एक हट गर्मी और जिद ये थी, जब रिसालत मआब हुजूर खातमुन नबिय्यीन रहमतुल लिल आलमीन इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बुतों की पूजा से रोक के अल्लाह की इबादत का दर्स देते, तो ये आगे से एक लॉजिक बयान करते। ये कहते, पता है हम क्यों इनकी पूजा पाठ करते हैं, क्यों इबादत करते हैं? जी क्यों करते हो? कहते हैं मा नअबुदुहुम इल्ला लियुक़र्रिबूना इलल्लाहि ज़ुल्फ़ा, ये हमें अल्लाह के करीब करते हैं। आज भी हमारे कुछ भाई ऐसी मिलती जुलती मिसालें देते हैं। वो कहते हैं जी छत पे चढ़ना हो तो सीढ़ी की जरूरत होती है, सीढ़ी के बगैर नहीं चढ़ा जाता। तो अल्लाह ताला को मिलना हो तो एवं नहीं मिला जाता अल्लाह ताला को, फिर किसी न किसी का तौसल, किसी न किसी का तवस्सुत, किसी न किसी का वसीला डालना पड़ता है। कुरान करीम ने एक हिकमत बयान फरमाई है
ایک قانون بنایا ہے. وہ قانون کیا وضع کیا گیا؟ فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہ بنایا کرو. اللہ کریم منع فرماتا ہے فَلَا تَضْرِبُوا لِلَّهِ الْأَمْثَالَ. اللہ کے لیے مثالیں نہ بناؤ، مثالیں نہ پیدا کرو. یہاں سورہ زمر پڑھ رہے ہیں کہ کفار کو جب کہا جاتا اللہ کو چھوڑ کے دوسروں سے کیوں مانگتے ہو، وہ کہتے ہیں ہم اس لیے ان کی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. بھائی یہ تو آپ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کر رہے ہیں. نعوذ باللہ نعوذ باللہ. کیا اللہ تعالیٰ کی ہستی اس بات کی محتاج ہے کہ جب کسی کے ذریعے کسی کے توسط سے میرا بندہ کوئی اپلیکیشن کوئی درخواست دے گا تو پھر اس میں غور و فکر ہوگا؟ وہ مالک تو ایسے ہیں، ہم ماں کے پیٹ میں تھے وہاں پہ بھی ہمارا خیال رکھتے تھے. وہ مالک تو ایسے ہیں کہ ہم دنیا میں بچپن میں ہو، لڑکپن میں ہو، جوانی میں ہو، بڑھاپے میں ہو، بیماری میں ہو، صحت میں ہو، اللہ کریم ہمارا خیال رکھتے ہیں. ہماری ضروریات کو ہم سے زیادہ ہمارے اللہ جانتے ہیں. تو اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر وسیلہ یہ ایک متنازع سا موضوع بن چکا ہے امت کے اندر. لیکن آسان اس کا حل یہ ہے، وسیلہ کس چیز کا ڈالنا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک اولاد چھوڑ کے جاؤ، وہ آپ کے لیے دعا کرتی رہے، یہ بہترین وسیلہ ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی راہ میں تم خرچ کرتے ہو، وہ تمہارے لیے بہترین وسیلہ ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ نیک اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، جیسا کہ ساتویں پارے کے شروع میں فرمایا کہ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ. کہ جو اللہ والے ہیں قرآن سنتے ہیں ان کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں اور کہتے ہیں ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، کہ اللہ ہم ایمان لے کے آپ ہمیں گواہوں میں لکھ لیجئے، نیکوکاروں میں شامل فرما لیجئے. ایسی باتیں بطور وسیلہ پیش کریں. وہ صحیح البخاری میں بڑی مشہور روایت ہے، یہ صحیح واقعہ ہے. رسول اللہ علیہ السلام نے بیان فرمایا 3 بندے جا رہے تھے، بارش آئی، وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے ٹھہرے. ایک پتھر آیا، غار کا منہ بند ہو گیا. بڑا زور لگایا لیکن وہ ہلنے کا نام، ان کو یقین ہو گیا بھائی اب تو مر گئی. یہاں پہ نہ کوئی پوچھنے والا، نہ پانی نہ دانا. تو بیٹھے بیٹھے ان کے دل میں خیال ہے کیوں نہ اپنے نیک عمل یاد کر کے اللہ سے دعا مانگے. ایک بندہ اٹھا، اس نے اپنا نیک عمل اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا. دوسرا اٹھا، تیسرا اٹھا. یقین کیجئے حضور فرماتے ہیں معجزانہ طور پہ وہ پتھر خود بخود پیچھے ہٹ گیا. تو وسیلے کا اصل یہ مفہوم سمجھیے، یا اللہ میں نے یہ فلاں وقت نیک کام کیا تھا، اللہ کریم اگر آپ کی بارگاہ میں قبول ہے تو پھر خیر فرما دے، اپنی رحمت فرما دے. یہ مسنون طریقہ ہے. تو کافر کہتے کہ ہم ان کی پوجا بتوں کی اس لیے کرتے ہیں الا لیقربونا الی اللہ زلفی، یہ اللہ کے قریب ہمیں کر دیتے ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، جن چیزوں میں یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان میں فیصلہ فرما دیں گے. ان اللہ لا یہدی من هو کاذب کفار، اللہ جھوٹے اور ناشکرے کو ہدایت نہیں دیتے. لو اراد اللہ، پھر ایک الزام اور لگاتے کفار مکہ، کہتے اللہ تعالیٰ کی اولاد ہے، اور ظلم بھی یہ کرتے کہ اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے تھے. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ. 14ویں پارے میں ہم پڑھ رہے ہیں پہلے. جب ان میں سے کسی کو بتایا جاتا تمہارے گھر بیٹی ہوئی ہے، اس کا چہرہ لٹک جاتا، سیاہی چھا جاتی چہرے کے اوپر. اپنے لیے بیٹیاں پسند نہیں کرتے اور اللہ تعالیٰ کے لیے کہا کرتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں. کتنا ظلم ہے. اللہ کریم فرماتے ہیں لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ اولاد پکڑنا چاہتے لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تمہارے مشوروں کی تو ضرورت نہیں تھی کہ بیٹیاں لینی ہے یا فرشتوں کو بیٹیاں بنانا ہے یا عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنانا ہے یا عزیر علیہ السلام کو بیٹا بنانا ہے. اللہ اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتے چن لیتے. لیکن بات کیا ہے، سبحانہ، اللہ پاک ہے، سبحانہ اللہ پاک ہے، وہ اللہ الواحد القہار، وہ اللہ ہے، اللہ ہے. اللہ معبود کا نام ہے، وہ اللہ ہے. اولاد تو عبد ہوتی ہے، اولاد تو مخلوق ہوتی ہے، وہ خالق ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد ہو؟ الواحد، وہ اکیلے. ذرا توجہ فرمائیے گا، الواحد وہ اکیلے ہیں، اللہ کا کوئی ثانی نہیں، کوئی شریک نہیں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں. القہار، روب دبدبے والے ہیں. اس میں ایک نقطہ سمجھایا گیا، باپ بیٹے کے اندر ایسی بات نہیں ہوتی. جتنی مرضی لڑائی ہو جائے، جتنا مرضی اختلاف باپ بیٹے کا ہو جائے، باپ کا دل پھر نرم ہوتا ہے. باپ کا نرم نہیں ہوگا تو بیٹے کا باپ کے لیے نرم ہو جائے گا. یہ رشتہ ایسا ہے.
अल्लाह रब्बुल आलमीन पूरे रोब और दबदबे वाले हैं, मतलब कि अल्लाह किसी के बाप नहीं है, अल्लाह ताला ने औलाद नहीं पकड़ी, इसलिए यहाँ पे ये इसमें ये सिफाती इसम शामिल किया गया। अल्लाह ताला कौन है? खलक़स समावाति वल अर्ज़ बिल हक़, जमीनों आसमान को अल्लाह ताला ने हक के साथ पैदा फरमाया। युकव्विरुल लैला अलन नहार, ढांप लेते हैं रात को दिन पर। युकव्विर, कवर करना, हम उर्दू में भी ये लफ्ज बोलते हैं, फलां चीज को कवर कर लिया गया। इंग्लिश में भी यही फॉर्म इस्तेमाल होती है, कवर करना किसी चीज को, मतलब क्या? ढांपना। अरबी में एक लफ्ज बोला जाता है तकवीर। तकवीर कहते हैं ये जो पगड़ी हम बांधते हैं ना, सर पे रुमाल बांधते हैं, इसकी फिर हम वो पेच डालते हैं, बल देते हैं, इस कैफियत को अरबी जुबान के अंदर तकवीर कहा जाता है कि उमामा बांधा, सर पे पगड़ी बांधी, एक पल्लू पूरा किया, यहाँ पे आके इसका एक बल हो गया। अब जब दूसरा बल घुमा के लाएंगे तो नीचे क्या था वो छुप जाएगा, किसी को पता नहीं चलेगा। इसी तरह दस्तार के पगड़ी के पेच होते हैं, बल होते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया युकव्विरुल लैला अन्नहार, जैसे पगड़ी के बल एक के बाद दूसरे को ढांप लेते हैं, इस तरह रात दिन को ढांप लेती है, दिन रात को ढांप लेता है। अल्लाहु अकबर कबीरा। वसख्खर अश-शम्स वल क़मर, सूरज और चांद को अपने ताबे कर दिया, मुती कर दिया, फर्मा बरदार कर, ड्यूटियां लगा दी। कुल्लुन यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक चुप करके अपनी मौज में चल रहा है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक। ये खाली जो सूरज है ये 72,80,000 मील रोजाना सफर करता है, 220 किलोमीटर पर सेकंड इसकी रफ्तार है सूरज की। अल्लाह अकबर कर। कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, ये जितना हफ्ते अफलाक निज़ाम शमसी है ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एक वक्त तक चल रहे हैं। और साइंसदानों ने मजमूई एतबार से जो इसकी स्पीड क्रिएट की है वो 20,000 मील फी घंटा है पूरे निजाम की। यानी अकेली गाड़ी रोड पे दौड़ रही होगी ना, उसकी स्पीड यकीनन ज्यादा होगी। जब 2-3 गाड़ियां हमारे आगे पीछे होंगी रश की बिना पे, फिर हमारी स्पीड ऑटोमेटिक स्लो हो जाती है। तो मजमूई एतबार यानी अकेला सूरज तो दौड़ है 220 किलोमीटर फी सेकंड के एतबार से। अगर मजमूई तौर पे देखें कि पूरी ट्रैफिक है निजाम शमसी की, उसमें सूरज भी है, चांद भी है, दीगर सियारे भी हैं, जब मजमूई एतबार से देखा जाए तो साइंसदान कहते हैं 20,000 मील फी घंटा की रफ्तार से ये निजाम चल रहा है, ये दौड़ रहा है, जिसके लिए अल्लाह ताला ने लफ्ज बोला कुल्लु यजरी लिअजलिन मुसम्मा, हर एक दौड़ रहा है अपनी मुकर्रर मुद्दत के मुताबिक। जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा फिर क्या होगा? इज़ शम्सु कुव्विरत, जब अल्लाह का हुक्म हो जाएगा फिर क्या होगा? सितारे ढट जाएंगे। फिर क्या होगा? सूरज बेनूर हो जाएगा। फिर क्या होगा? चांद की ये जो ग्रेविटी है ये खत्म कर दी जाएगी। अल्लाह हुवल अज़ीज़ुल गफ्फार, खबरदार वही अल्लाह गालिब हैं, बख्शने वाले हैं। फिर एक तवज्जो हमारी, ये तो निज़ाम शमसी की तरफ तवज्जो थी ना, ज़हमत हो सकती है कि दूर पता नहीं हमें क्या, हमने कौन सा देखा है, वो मरीख क्या है, सूरज क्या, चांद क्या है। अल्लाह करीम फरमाते हैं अच्छा अपनी तरफ तवज्जो कर लो। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, तुम्हें किसने बनाया है? एक जान से। तुम्हें ये अल्लाह की मर्जी है ना, माँ भी ना हो, बाप भी ना हो, आदम अलैहिस्सलाम को बना दिया जाता है। सिर्फ मर्द हो औरत ना हो, अम्मा हव्वा को बना दिया जाता है। और कहीं पे मर्द ना हो, खाली औरत बीबी मरियम हो, ईसा अलैहिस्सलाम को बना दिया जाता है। अल्लाह मर्जी वाले हैं। अल्लाह करीम फरमाते हैं तुम्हें एक जान से पैदा किया, सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा, फिर उनसे उनकी बीवी को बनाया, यानी अम्मा हव्वा पैदा हो गई थी। व अंज़ल लकुम मिनल अनआमि समानियत अज़वाज, जानवरों के एतबार से मुशरिकीन मक्का बड़ी तोहम परस्ती का शिकार थे। इनकी मुख्तलिफ शिरकिया रसूमात थी, जिसकी वजह से यहाँ अल्लाह ने बावर करवाया, याद दहानी करवाई कि 8 किस्में हैं चौपायों की, वो अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमान से उतारी हैं। फिर अपनी तरफ तवज्जो करो। यख़्लुक़ुकुम फ़ी बुतूनि उम्महातिकुम, तुम्हारी माओं के पेटों में तुम्हें पैदा अल्लाह फरमाते हैं। खल्क़म मिन बादि खल्क़िन, ये प्रोसेस है बच्चे का, पहले दिन से लेके जब से प्रेगनेंसी होती है तब से डिलीवरी तक, इसलिए लफ्ज बोला गया खल्क़म मिन बादि खल्क़िन। रोज बच्चा जनीन जो है वो एक नई सूरत हाल इख्तियार करता है, रोज एक नए प्रोसेस से गुजरता है। फी ज़ुलुमातिन सलास, 3 अंधेरे। ये 3 अंधेरे कौन से हैं? मुफस्सिरीन लिखते हैं पहला अंधेरा माँ के पेट का अंधेरा है, दूसरा अंधेरा रहम का अंधेरा है,
तीसरा अंधेरा वो जो औल हम बोलते हैं, वो झिल्ली जिसके अंदर बच्चा महफूज होता है माँ के पेट के अंदर, इन 3 अंधेरों के अंदर उस बच्चे की परवरिश 9 माह होती है, उस बच्चे की जरूरियात पूरी होती हैं, उसको आंखों जैसी, कानों जैसी, नाक जैसी, दिमाग जैसी, दिल जैसी, जिगर जैसी, गुर्दों जैसी नेमतें माँ के पेट के अंदर ये सारा कुछ तैयार हो रहा होता है। इसलिए ज़ालिकुमुल्लाह, ये है अल्लाह, तारुफ करवाया जा रहा है, ज़ालिकुमुल्लाहु, ये है अल्लाह रब्बुकुम, जो तुम्हारे रब है, लहुल मुल्क, अल्लाह ही के लिए बादशाहत है, ला इलाहा इल्लाहु, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, फअन्ना तुसरफून, ए लोगो तुम कुरान करीम छोड़ के, अल्लाह की सिफात को छोड़ के कहां बह के जा रहे हो, कहां से फेर दिए गए, कहां से तुम्हारे अकायद व नजरियात गलत कर दिए गए। अल्लाह सुब्हानहु व तआला इरशाद फरमाते हैं, इन तकफुरू, अगर तुम कुफ्र करो, न शुक्री करो, फ़इन्नल्लाह गनिय्युन अन्कुम, अल्लाह तुमसे बेपरवाह है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम पूरी इंसानियत अपने में से सबसे मुत्तकी बंदे की तरह हो जाओ तो मेरे इख्तियारात और मेरी कुदरतों के अंदर कोई इजाफा नहीं कर सकते। और अगर तुम सारे मिलके अपने में से सबसे बदतरीन इंसान की तरह हो जाओ तो फिर भी मेरी खुदाई, मेरे इख्तियारात के अंदर तुम कोई कमी वाक़ई नहीं कर सकते। ये शुक्र और ना शुक्री, ये इंसान अल्लाह सुब्हानहु व तआला के यहाँ जज़ा और सज़ा का मुस्तहिक होता है। फ़ज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, मुझे याद रखो मैं तुम्हें याद रखूंगा, वश्कुरूली, मेरा शुक्रिया अदा करो, वला तकफुरून, न शुक्री का इर्तिकाब मत करो। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मैंने जहन्नुम में सबसे ज्यादा औरतों को देखा, जहन्नुम के अंदर सबसे ज्यादा औरतें थीं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल हुआ, हुजूर वो कैसे, किस पे नापे? तो आपने फरमाया था, तकफुरनल लाना व तकफुरनल आशीर, ये ज्यादा लान तान करने वाली हैं और ज्यादा नशुक्री करने वाली है। नशुक्री के सबब इंसान जहन्नुम में दाखिल हो जाता है। लिहाजा अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, इन तकफुरू, अगर तुम नशुक्री करो अल्लाह तुमसे बेपरवाह है। वला यरज़ा लिइबादिहिल कुफ्र, अल्लाह अपने बंदों से नशुक्री पसंद नहीं फरमाते। कुछ ना कीजिए, सिर्फ इंसान ये तो सब्र कर ले कि मैंने अपने अल्लाह की पसंद को इख्तियार करना है, जो मेरे रब की पसंद वो मेरी पसंद। तो अल्लाह की ताला की पसंद क्या है? अल्लाह हमसे नशुक्री को पसंद नहीं फरमाते, अल्लाह करीम हमसे शुक्र को पसंद फरमाते हैं। व इन तशकुरू यरज़हु लकुम, अल्लाह तुमसे राजी हो जाएंगे। सहीहुल मुस्लिम की जो रिवायत है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मोमिन का मामला बड़ा अजीब है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा रहे थे उस वक्त, फरमा रहे थे मोमिन का मामला बड़ा अजीब है, मोमिन हर हाल में खैर ही खैर समेटता है। कैसे? फरमाया, जब इसको कोई परेशानी लाहक होती है, ये अल्लाह सुब्हानहु व तआला की तरफ से आने वाली इस मुसीबत पे सब्र करता है, जब खुशी मिलती है शुक्र करता है। सब्र का बदला भी जन्नत, शुक्र का बदला भी जन्नत है। इसलिए मोमिन के लिए हर हाल में खैर ही खैर है। इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला मदरसा में अपने शागिर्दों को पढ़ा रहे थे। एक गुलाम अंदर दाखिल हुआ, चेहरे पे परेशानी के आसार हैं। हजरत सबक पढ़ा रहे थे तो कहने लगा, हजरत वो आपका जो तिजारती कपड़े वाला जहाज आ रहा था, बहरी जहाज, वो रास्ते में गर्क हो गया, बहुत बड़ा नुकसान है। हजरत फरमाने लगे अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। कुछ देर के बाद वक्त गुजरा, कुछ वही गुलाम फिर वापस आया, अभी क्लास चल रही थी, सबक पढ़ा रहे थे इमाम अबू हनीफा रहिमहुल्लाह ताला। वह कहने लगा, हजरत वो खबर झूठी निकली, गलती लगी थी, किसी और का जहाज था, हमारा नहीं था, हमारा जहाज बच गया। फिर फरमाते अल्हम्दुलिल्लाह, फिर सबक पढ़ाना शुरू कर दिया। शागिर्द ने बड़े हैरानगी के आलिम में कहा, हजरत पहले इतनी बड़ी खबर मिली कि पूरा आपका तिजारती
जहाज तबाह हो गया, आपने बिल्कुल परवाह नहीं की, और अभी खबर मिली कि बचा हो गया, हम नुकसान से आपने फिर परवाह नहीं की, बस सबक पढ़ाने में मसरूफ है। तो हजरत फरमाने लगे, जब पहले इत्तला मिली कि मेरा नुकसान हो गया है, जहाज गर्क हो गया है, तो ये भाई अल्लाह की तरफ से था, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं तो शुक्र ही अल्लाह का हर हाल में कर सकता हूँ। अभी जब खबर मिली कि अल्लाह ने नुकसान से महफूज फरमा लिया, तो फिर भी मैं तो अल्लाह का शुक्र अदा कर सकता हूँ। दुनिया के अंदर जो कवानीन पढ़ाए जाते हैं, इंटरनेशनल कवानीन जो है, उनमें एक कानून है जिसका नाम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कशिश का कानून। उसका लुबे लुबाब यही है जो इस्लामी तालीमात का खुलासा है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो दुनिया के अंदर यूनिवर्सिटियों के अंदर पढ़ाया जाता है, उसका मतलब ये होता है कि आपके दाएं बाएं हर किस्म की खबरें मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप रेडियो ऑन करें ना, यहाँ बैठे हुए, ये जैसे मोबाइल सिग्नल कैच करता है, रेडियो ऑन करें तो आप उसके चैनल्स ट्यून करते जाएंगे, चेंज करते जाएंगे, तो कोई ना कोई फ्रिक्वेंसी आती जाएगी। किसी चैनल पे कोई बड़ी बुरी खबर आएगी, किसी चैनल पे बड़ी अच्छी खबर आएगी। अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये पढ़ाता है कि ये हमारी मर्जी है, हमने कौन सी फ्रिक्वेंसी इख्तियार करनी है, हमने कौन सी खबरें सुननी है, अच्छे वाली सुननी है कि बुरे वाली खबरें सुननी है। हज़रात, दुनिया के अंदर ये नफा, ये नुकसान, ये मुसीबत, ये खुशी, ये गमी, ये सारा कुछ मौजूद है। शरीयत यही तो पढ़ाती है कि शुक्र करो हर हाल में, अल्लाह करीम तुमसे राजी हो जाएंगे, और जिसको अल्लाह की रज़ा मुयस्सर आ जाए, उसकी दुनिया भी संवर गई, उसकी आखिरत भी संवर गई। अल्लाह करीम इरशाद फरमाते हैं, व इन तशकुरू, अगर तुम शुक्र करो, यरज़ाहु लकुम, अल्लाह पसंद फरमाएंगे उसे तुमसे। वला तज़िरु वाज़िरतुन विज़रा उख़रा, कोई जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी, कोई जान किसी दूसरे का बोझ नहीं उठाएगी। हर एक को अपना बोझ खुद उठाना पड़ेगा, अपने किए का खुमियाजा खुद भुगतना होगा। सुम्मा इला रब्बिकुम मरजिउकुम, फिर तुम सबको अल्लाह की तरफ लौटना है। फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, अल्लाह करीम तुम्हारे सामने तुम्हारे आमाल की किताब ले आएंगे, सारी की सारी फहरिस्त आ जाएगी, लिस्ट आ जाएगी, ये कुछ करते रहे, ये कुछ करते रहे, ये कुछ करते रहे। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, क्योंकि अल्लाह सीनों की छुपी बातों को भी जानने वाले हैं। और अल्लाह ताला के इल्म की वो मिसाल मैं अक्सर आपको हदीस मुबारक बरकत के लिए सुनाता हूँ। सही मुस्लिम में वो रिवायत आती है कि अल्लाह ताला के इल्म का अंदाजा तो ये है कि स्याह रात की तारीकी के अंदर घने जंगल की, काले पहाड़ की, काली चट्टान के ऊपर चलने वाली स्याह चींटी के कदमों की आहट भी अल्लाह के इल्म में है। और कुरान करीम ने एक लॉजिक बयान फरमाई है, वमा तस्कुतु मिन वरक़तिन इल्ला यअलमुहा, कायनात का कोई एक पत्ता हरकत नहीं करता मगर अल्लाह के इल्म में होता है। ये आजकल बारिशों का दौर है, हदीस में आता है कि बारिश बरसने वाली का एक एक कतरा अल्लाह के इल्म में होता है कि कौन सा कतरा रस्ते में ड्राई हो गया, कौन सा कतरा जमीन पे गिरा, जब जमीन पे गिरा तो उसकी वजह से कौन से बीज में से कॉम्पल निकली और उसके नतीजे में कौन सा तनावर पौधा या दरख्त पैदा हुआ, ये सब कुछ आपके परवरदिगार के इल्म में है। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, अल्लाह सीनों की छुपी जानने वाले हैं। वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्र, फिर हमारी एक तजरबी का जिक्र किया जा रहा है। इससे पहले सूरह यूनुस में भी ये मजमून हम पढ़ चुके हैं, मैं इसलिए इख्तिसार से कर रहा हूँ। वइज़ा मस्सल इंसान ज़ुर्र, जब बंदे को मुसीबत, इंसान को जब तकलीफ पहुंचती है, फिर क्या करता है, दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, फिर अल्लाह की तरफ रुजू करते हुए लंबी लंबी दुआएं मांगनी शुरू कर देता है। ये अक्सर आपने देखा है, अल्लाह ताला हमें जमीनी आसमानी आफात से महफूज फरमाए। अक्सर आपने देखा है मोबाइल पे मैसेज आ जाए, जी जल्जला आ रहा है या जल्जला आया है, या हल्की फुल्की अगर कहीं पे हरकत हो, जल्जला महसूस हो, लोग अस्तगफिरुल्लाह करते घरों से बाहर निकल आते हैं, चौकों में इकट्ठे हो जाते हैं, ग्राउंड ढूंढते हैं कि जहां सारे मिलके किसी बड़े नुकसान से बच सके। तो जब मुसीबत आती है अल्लाह को पुकारते हैं, जब मुसीबत चली जाती है फिर फर्जी नमाज भी नसीब नहीं होती। ये इंसान की एक तजरबी है। मालिक कायनात इरशाद फरमाते हैं, जब इस इंसान को तकलीफ पहुंचे, दआ रब्बहु मुनीबन इलैहि, लंबी लंबी तस्बीहां करता है, लंबे लंबे वजीफे करता है, बड़ा नेक पारसा बन जाता है। सुम्मा इज़ा क़व्वलहु निअमतन मिन्हु,
जब अल्लाह उसे अपनी नेमत अता फरमा देते हैं, नसिया मा कान यदू इलैहि मिन क़ब्ल, ये भी भूल जाता है मैंने क्या दुआएं मांगी थी। भूल ही जाता है कि मेरा तो परवरदिगार भी था जिस अल्लाह के सामने मैं गिड़गिड़ा रहा था, माफिया मांग रहा था, मुसीबत टलने की दुआएं कर रहा था। तो जब मुसीबत टल जाए तो फिर अल्लाह की याद को तो फरामोश नहीं करना चाहिए। हदीस शरीफ में आता है, रसूलुल्लाह अलैहि सलाम फरमाते हैं, जो सुख के अय्याम में अल्लाह को नहीं भूलता, दुख के अय्याम में अल्लाह उसको तन्हा नहीं छोड़ते। जो सुख के अय्याम में अपने मालिक को याद रखे, अल्लाह करीम मुसीबतों में भी उसके लिए कारसाज बन जाते हैं। वजाअल लिल्लाहि अंदादन, ये बंदा जब मुसीबत टल जाती है फिर अल्लाह के साथ औरों को शरीक बनाना शुरू कर देता है। लियुदिल्ला अन सबीलिही, ताकि अल्लाह की राह से गुमराह करे लोगों को। कुल आप फरमा दीजिए, तमत्ता बिकुफ्रिका कलीला, अपनी नाशुक्री के साथ फायदा उठा लो, कितना उठा सकते हो। इन्नका मिन असहाबिन नार, तू तो जहन्नुम वालों में है। नाशुक्री के सबब इंसान जहन्नुम में दाखिल कर दिया जाता है। अम्मन, फिर मिसाल दी गई, अम्मन हुवा कानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमा, एक ये बंदा जो मुसीबत में तो गिड़गिड़ा के अल्लाह को पुकार रहा था, लेकिन जब इसकी मुसीबत रफा हुई अल्लाह को भूल गया, फिर इसको भूल गया मैं दुआएं कौन सी कर रहा था। एक तरफ ये बंदा है, एक किरदार ये है, एक किरदार इसके अपोजिट, वो कौन सा किरदार है, हुवा कानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमा, एक वो बंदा जो रात की घड़ियों में अल्लाह का जिक्र करता है। अल्लज़ीना यज़कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ रब्बना मा ख़लक़्ता हाज़ा बातिला सुब्हानका फ़क़िना अज़ाबन नार। कहा है एक वो शख्स क़ानितुन, कुनूत लफ्ज़ हम बोलते हैं ना, कुनूत का मतलब होता है इबादत में रहने वाला। क़ानितुन आना अल-लैली साजिदन व काइमा, एक वो बंदा जो रात को क़याम करता है, सजदा करता है, यानी इबादत में रात गुजारता है। यहज़रुल आखिरा, आखिरत से डरते हुए। अब मेरा भी जी चाहता है, आपका भी जी चाहता है हम रात क़याम में गुजारे। अल्लाह वालों की ये निशानी थी, हमारे इस्लाम की ये निशानी थी, हमारे बड़ों की ये निशानी थी। आज हम भूल चुके हैं अपने बड़ों का तरीक़ा-ए-कार। वो रातों को शब्ददारी किया करते थे, उनको फिक्र होती थी हमारी तहज्जुद कहीं कदा न हो जाए। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है, मुझे एक दिन हुजूर पे बड़ी मोहब्बत आई कि सरकार थके होते हैं, सारा दिन तबलीग के काम भी करते हैं, मामलात भी देखते हैं, दीगर इंतजामात भी देखते हैं। मैंने मोहब्बत में हुजूर का गद्दा डबल कर दिया कि नरम बिस्तर होगा, सरकार जरा आराम फरमा लेंगे, इस्तिराहत फरमा लेंगे। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी रात सो नहीं सके। सुबह हुई, फरमाया आयशा क्या बिस्तर मेरा नहीं बिछाया था? हुजूर बिस्तर आपका था, लेकिन फरते मोहब्बत में मैंने गद्दा दोहरा कर दिया कि बिस्तर जरा नरम हो जाएगा, आप सुकून की नींद सो जाएंगे। तो सरकार ने फरमाया यही वजह थी आयशा, नरम बिस्तर पे मुझे सारी रात इस डर की वजह से नींद नहीं आई, अगर मैं सो गया कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हो जाए। ये अल्लाह वालों का मामूल है, वो डरते हैं कहीं मेरी तहज्जुद की नमाज कज़ा न हो जाए। एक वो बंदा जो रात को इबादत करता है। अब दो इसके तरीके कार हैं। एक तो सीधी सी बात है, अल्लाह करे जवानी के आलिम में भी, बुढ़ापे में तो कई आवारिज लाहक हो जाते हैं। असल इबादत की चाशनी तो जवानी की है। वो शेख सादी रहीमहुल्लाह ने फारसी में लिखा है, दर जवानी तौबा करदन शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी गुर्ग जालम मेशवद परहेजगार। जवानी में इबादत करो, ये अल्लाह के नबियों की सुन्नत है। जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। एक तो ये है कि आप अपना मामूल बनाइए पिछली रात का उठना, अल्लाह नसीब फरमा दे। दूसरा, मेरा और आपका जी चाहता है हम शब बेदारी वालों में शामिल हो जाए, रात की इबादत वालों में शामिल हो जाए। लेकिन दुनियावी मामलात ऐसे हैं, कुछ थकन ऐसी, थकावटें ऐसी, परेशानियां ऐसी, बीमारियां ऐसी हैं, तकलीफ ऐसी हैं कि चाहने के बावजूद अगर क़यामुल लैल का एहतिमाम नहीं हो सकता, फिर हुजूर ने दो रास्ते मुरहमत फरमाए। नंबर एक, आप फरमाते हैं जो आयशा की नमाज बाजमात अदा करके सो जाए
اور فجر आके बाद जमात अदा करे, यूं ही समझिए पूरी रात क़याम का सवाब उसे मिले। कुरान करीम के साथ मुंसलिक रहने के लिए ये रास्ते छोटे छोटे बताए गए कि सूरह इखलास जो 3 मरतबा पढ़े पूरे कुरान पाक की तिलावत का सवाब, सूरह मुल्क पढ़ो कब्र के अजाब से निजात में, सूरतुल वाक़िया मगरिब के बाद पढ़ो फाका कशी से अल्लाह निजात नसीब फरमा देंगे, सूरह सजदा की तिलावत। हज़रत आयशा फरमाते हैं हुजूर हर रात को सूरह ज़ुमर पढ़ा करते थे, सूरह बकरा की अक्सर व बेशतर तिलावत फरमाया करते थे। तो ये असल हमें कुरान करीम की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। सुनन नसाई की जो रिवायत में अर्ज कर रहा हूँ, सरकार दो आलम इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा रात को 100 आयात की तिलावत कर लेता है, अल्लाह करीम उसे पूरी रात के कुनूत करने वालों में शामिल फरमा लेते हैं। यानी जो सारी रात क़याम करते हैं, जो सारी रात इबादत करते हैं, अम्मन हुआ क़ानितुन आना अल-लैल, जो सारी रात इबादत करता है, खड़ा भी है, सजदे में भी गिड़गिड़ाता है, अल्लाह से बातें करता है। मैं तो आपसे गुजारिश बार बार करता हूँ, दुआ भी मांगा करें लेकिन कभी कभी अल्लाह से बातें भी किया करें। आज दुआ नहीं मांगनी, आज मैंने अपने अल्लाह से रात को बातें करनी है। अल्लाह जैसे आपस में दोस्त से बातें करता है, अपने अल्लाह जी से बातें किया करे तन्हाई में बैठ के। अल्लाह जी ये मामला ऐसे है, अल्लाह जी ये देखिए यहाँ से मैं परेशान हो रहा हूँ, अल्लाह जान ये देखिए यहाँ से मेरे साथ ये चल रहा। बातें किया करें अल्लाह के साथ, ये बड़ी लज्जत वाला मौका है, बड़ी लज्जत वाला अमल है ये। अल्लाह करीम फरमाते हैं यहज़रुल आखिरत व यरजू रहमत रब्बी। 2 बातें हैं क़याम करने वाले के अंदर। वो तहज्जुद इसलिए नहीं पढ़ता कि लोगों को दिखा दे, वो तहज्जुद इसलिए नहीं पढ़ता कि तसन्नु रियाकारी दिखलावा हो, वो तहज्जुद इसलिए पढ़ता है, रात का क़याम इसलिए करता है कि अपने अल्लाह के यहाँ पेश होने से डरता भी है, अपने रब की रहमत की उम्मीद भी रखता है। आइए आपको एक हदीस मुबारका सुनाऊं, ईमान ताज़ा हो जाएगा। इसको तफसीर में नोट फरमा लें, बाबरकत है। रसूलुल्लाह अलैहि सलाम एक जवान के पास गए, आखिरी वक्त था जवान का, मौत की कश्मकश में था वो जवान। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जवान के पास जाते हैं, फरमाते हैं भाई कैसा मामला है, क्या महसूस कर रहे हो, क्या चल रहा है? वो नौजवान कहने लगा हुजूर डर भी बहुत है और अल्लाह की रहमत की उम्मीद भी बहुत है। तो हुजूर फरमाने लगे जिस बंदे में ये 2 चीजें शामिल हो जाए ना, डर भी हो और उम्मीद भी हो, अल्लाह करीम उसकी उम्मीद के मुताबिक उसको नवाज के उसका डर खत्म फरमा देते। ये उस बंदे को हुजूर ने तसल्ली दी मौत के करीब, जो कह रहा था हुजूर गुनाहों का डर भी है कि क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह को जाके, और उम्मीद भी है कि अल्लाह की रहमत हमारे लिए है। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाता है जिस बंदे में ये 2 बातें शामिल हो जाए, डर भी हो उम्मीद भी हो, अल्लाह उसकी उम्मीदों से ज्यादा बढ़ के उसको अता फरमा देते हैं और उसका डर खत्म फरमा देंगे। मतलब क्या कि आखिरत में उसे अल्लाह अज़ाब से बचा लेंगे। कुल हल यस्तविल लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, आप फरमा दीजिए जानने वाले और ना जानने वाले क्या ये बराबर हो सकते हैं? हमारे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट ये पाया जाता है, ये जिसने बहुत ज्यादा मास्टर डिग्रियां ली हो, बहुत ज्यादा पढ़ा हो, दुनियावी दीनी वो अल्लामा फहामा हो, वो जानने वाला है, और उसके मुकाबले में दूसरा बंदा जो स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा वो जाहिल है, ना जानने वाला। ये मायार नहीं है। मायार जाहिल और आलिम का कुरान करीम ने बयान फरमाया। वो क्या है? जिसके दिल में आखिरत का डर हो वो जानने वाला है, वो इल्म वाला है। जो अल्लाह से डरता है वो इल्म वाला है। और अगर अल्लाह का डर नहीं, फिर चाहे 32 मास्टर डिग्रियां उठा ले, फिर चाहे किताबों के अंबार उठा ले, बड़े फिका पढ़ ले, हदीस शरीफ पढ़ ले, तफसीरें पढ़ ले, फिर जो मर्जी कर ले, अगर अल्लाह का डर नहीं है वो अल्लाह की नजरों में जाहिल है। तो अल्लाह की निगाह में आलिम और जाहिल का मयार ये है कि जो अल्लाह से डरने वाला, आखिरत के लिए तैयारी करने वाला वो आलिम है। जैसा कि कुरान करीम ने इरशाद फरमाया इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, अल्लाह के बंदों में से अल्लाह से डरते वही है जो अहले इल्म होते हैं। तो असल इल्म ये है कि अल्लाह से डरा जाए, कदम कदम पे अल्लाह ताला की फरमा बरदारी की जाए। इन्नमा यतज़क्करु उलुल अलबाब, बेशक ये नसीहतें हैं अकल वालों के लिए। इस दुआ के साथ आज का सबक मुकम्मल फरमा लीजिए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुझे और आपको कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी जिंदगी का एक एक पल बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए। हम अपने दिन का आगाज अल्लाह की तौफीक से फहमुल कुरान जैसे अदीम अमल से करते हैं। इसकी बदौलत
बस अल्लाह ताला हमारे दिल के बाकी मामलात में भी रहमतों और बरकतों का नुज़ूल फरमा दें। कुरान करीम पढ़ने पढ़ाने की खैर बरकत हम पर, हमारे अहले खाना, कारोबार और दीगर मामलात पर वारिद फरमा दें। हमें शर शैतान, शर इंसान और खास तौर पे हमें अपने ही नफ्स की शरारतों से अल्लाह बचने की तौफीक नसीब फरमा दें। रिश्तेदारों की सूरत में, जानने वालों या ना जानने वालों की सूरत में जो जो हमारे हासिदीन हैं, अल्लाह उनके हसद के शर से हम सबको महफूज फरमा लें। हमें अपने घरों का सुकून नसीब फरमा दें। अल्लाह करीम सबकी नेक मुरादें अपनी जनाब से पूरी फरमा के दुनिया आखिरत की कामयाबियां नसीब फरमाएं। बीमारों को शिफाए कामिला आजिला नाफिया नसीब हो और अल्लाह हमारे फौज सुदगान की बख्शिश और मगफिरत फरमाए। रुकू के बाद की जो दुआ है बड़ी प्यारी दुआ है, इसको शामिल कीजिए नमाज के अंदर। समी अल्लाहु लिमन हमीदा के बाद रब्बना लकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। फरमाया नहीं, दुआ को सुन के फरिश्ते इसका अजर लिखने के लिए आपस में लड़ दें। एक कह रहा था मैंने अजर लिखना, दूसरा कह रहा था मैंने अजर लिखना। ये थे मुहतरम मोहम्मद सुलेमान शाकर, फाज़िल रूम इस्लामिया, लेक्चरर फ़हम कुरान क्लास। यूट्यूब चैनल दुनिया दीन कुरान मजीद का तर्जुमा और तफसीर सीखने के लिए और दीनी सवालात के जवाबात के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल होने के लिए 00923352520207 00923167983575 00923007446434। कुरान समझें, कुरान समझाएँ, दूसरों को भी कुरान समझने की दावत दें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी दुआएं, अज़कार, नमाज तर्जुमा से समझ कर पढ़ें, याद करें, दूसरों को भी याद करने की दावत दें ताकि अल्लाह तबारक व तआला हम सब की दुनिया व आखिरत दोनों अच्छी कर दे।